that beginner to pro course is there. So in that, first master data, then transactional data, and then configuration, some business processes. Okay, some advanced business processes we will take it out. Have you got the syllabus from class? Yes, sir. Yes. So as for syllabus, we are moving forward. So don't worry. We'll provide you the recorded lecture also. Whatever the lectures, live lectures which are recorded, that these recordings I will provide to you. Next, PPTs I will provide to you. In that, the screenshot are also available. So how to navigate to the system, how to go check in the system, all these things are available. Also at the end of the course, I will provide you the study material, previous year questions which are asked in some IT industries. But at the end of the course, time to time I will provide that material. Okay. So don't worry about that. What I expected from you, regularly attend the lectures, regularly do the practice, be patient, everything will be sorted out. Okay. And I know everyone, see, those are learning the plant maintenance, everyone is in working, correct? Because no one Yes, in sir. only home, so we should have to coordinate each other and try to push out our classes in daily basis and how much we are working. So one or two classes if you not able to attend, so don't worry, you can watch the recording. If you are still not able to get the things, so you can ask me. My classes is continuously running, so if the topic is coming, so that I will send the link of that class and cover that particular portion. Okay, so don't worry about it like आज मैं available नहीं हो तो then like मेरा miss हो जाएगा. So don't worry, कोई भी topic किसी का miss नहीं होगा, right? Are you comfortable with Hindi? Yes, sir. Okay, fine. Then आज एक किसी ने join नहीं किया था, क्या है? I think आपका बैचमेट है, right? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है, आज join किया नहीं किया, there is no issue. So we'll start. तो आपको ACB का कुछ भी आइडिया नहीं, right? So don't worry about it. नहीं है सर. बेसिक से सीखेंगे. आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? मैं छत्तीसगढ़ सर. ओके फाइन. तो पूरा रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन का आपको नॉलेज दिया जाएगा, जैसे रियल टाइम इंडस्ट्री में जो एसएपी पे काम होता है, लाइक दैट वी आर लर्निंग, करेक्ट? मीन्स वी आर लर्निंग लाइक in industry, like there is no SAP and someone want to install SAP in their system, okay, in their enterprises, or we can say in their organization. So एज अ SAP PM कंसल्टेंट का उसमें रोल क्या रहता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक्चुअल फील्ड पे काम क्या करना होता है. ओके, तो उसके फ्लो में से अपन सीखेंगे. ओके, सो फाइन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आपको सर्वर का एक्सेस मिल गया? हाँ सर. मिल गया. तो सर्वर आपने चालू, मतलब आपका ओपन हो गया SAP का S/4HANA सर्वर? हाँ हो गया सर. हो गया, फाइन. तो देयर इज नो इशू दैट. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपका? यस सर. ये दिख रहा है स्क्रीन? यस सर. So see, our today's topic is like functional location. नाम से ही पता चलता है कि we are talking about something about the locations. So in tell me, in your industry there are some big locations are there? Yes or no? Some locations like utility, substations. We can say example of automobile industry, assembly area, assembly lines, departments. These are the locations. Yes sir. So when we are installing SAP from scratch, okay, from scratch is nothing but the industry they are not using SAP. So like your industry, so you should in your industry your management decide we have to install the SAP, we want the SAP system. Okay, so what SAP consultant will do, they first survey of your company, they understand what are the locations, what are the hierarchical structure available in your plant, and they try to map, understand with the help of end users, those who know,
and try to map the same in the SAP. Correct. So this is nothing but a functional locations. So that all locations we should have to map in SAP. So first line say that a hierarchical structure that represent where equipment installed within the plant. इसका सिंपल मीनिंग है एक हायरार्की. यू नो द वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हायरार्की? नो सर. यस. हायरार्की मतलब क्या होता है? पोजीशंस. जैसे आप इंजीनियर हो, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर, Yes, sir. असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ. दिस इज नथिंग बट अ हायरार्की. ये हो गया रोल्स एंड का हायरार्की. वैसे प्लांट का भी हायरार्की होगा. पहले प्लांट होगा, उसमें फिर एरिया होगा, उसमें फिर लाइन होगा, उसमें फिर मशीन होगा. तो हायरार्की में लास्ट में क्या होगा? इक्विपमेंट होगा. इक्विपमेंट इज नथिंग बट अ मशीन. जैसे इंडक्शन मोटर ले लो, दिस इज नथिंग बट वन इक्विपमेंट. करेक्ट? यस सर. ओके, करेक्ट है. तो ऐसी चीज है. तो अपन यही बनाने वाले हैं. तो function location is nothing but a hierarchical structure that represent where equipment is installed within the plant. Correct? It's just a hierarchical structure that represent where we install the equipment. See, in your plant, if we want to identify induction motor, one induction motor, so how we can identify? So किधर रखा है? तो भाई प्लांट में है, उसके बाद डिवीजन ए में है, उसके बाद उसका असेंबली, डिवीजन ए के बाद असेंबली लाइन आएगा, उसके बाद सब असेंबली लाइन आएगा, उसके बाद सीएनसी मशीन आएगा, और फिर वो सीएनसी मशीन पे वो इंडक्शन मोटर वन लगा है. सो ये क्या हो गया? हायरार्की हो गया. करेक्ट? तो ये लाइन का यही मीनिंग है, हायरार्की का स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट वेयर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द प्लांट. यू गॉट दिस? समझ रहे हैं? ओके, फाइन. सो सेम चीज मैं रिपीट करता जाऊंगा जब तक आप समझ नहीं सके. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट, इट इज यूज टू. तो इसका क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी आर यूजिंग दिस? सो इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज, manage and track maintenance activities based on the physical locations. Correct? Because if the hierarchy is correct, with the help of that we can organize, manage and also track our maintenance activity. So physical location is what? Like plant. Under the plant there is a area, under the area there is system, under the system there is equipment. It is not necessary कि in every industry these types of structure is followed. It's depend upon industry to industry. Correct? So we can take an example like there is a plant, under we can call as factory, under this there is a area, we can call is a production area, under this there is a line, we can call is the assembly line, under this there is a machine, we can call is a drilling machine. Correct? So this is the hierarchy, and this hierarchy is nothing but a function location. And below that hierarchy we installing the equipment. Correct? So below the drilling machine we are installing the induction motor. So ये PPT, ये slide यही बताती है. Any doubt you can ask. नो सर. समझ गया? क्या समझ में आया एक बार बताओ मुझे. सिंपल लैंग्वेज में Sir, 1 or 2 minutes. सर प्लांट की मशीन से जो लेके प्लांट तक की जो फंक्शनल एरिया है उस एरिया के असेंबली लाइन का एक डायग्राम है. यस, डायग्राम मीन्स हायरार्की का स्ट्रक्चर. हर कंपनी में सेम रहेगा? नहीं रहेगा, बट ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा कि पहले प्लांट आएगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा एरिया, फिर छोटा छोटा एरिया, छोटा 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 होके फिर लास्ट इक्विपमेंट तक आएगा. करेक्ट है? तभी तो अपन उसको प्रॉपरली ट्रैक कर पाएंगे. करेक्ट? आपके इंडस्ट्री में जो एरियाज है, जो असेंबलीज है, जो डिविजन है, वो एसएपी सिस्टम में पहले अपने को फीड करना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन यूज द एसएपी सिस्टम इन योर इंडस्ट्री. करेक्ट? बिकॉज इन योर इंडस्ट्री देयर इज नो एसएपी. यू गॉट द थिंग्स राइट? तो नेक्स्ट इसको अपने को फिर बनाना पड़ेगा. तो ये सिस्टम में बनाने का काम रहता है एसएपी कंसल्टेंट का. ओके, तो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट लगते हैं, बनाने से पहले क्या क्या चीजें रेडी करनी पड़ती है, दैट आई विल टीच. ओके, डोंट वरी. सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चर इंडिकेटर. ये देखो, ये नाम कुछ नए लगेंगे, पर जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे देन ऑटोमेटिकली यू गॉट द थिंग्स. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो स्ट्रक्चर इंडिकेटर. देखो, स्ट्रक्चर इंडिकेटर नाम से क्या समझ रहा है? स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर रहता है, कौन सी भी चीज का एक स्ट्रक्चर रहता है. एंड इंडिकेटर मीन्स
those things which are indicating the structure, this is nothing but the structure indicator. Correct? Yes or no? Yes, sir. Think anyone Yes, joined? sir. Acha. Arindam Banerjee is also joined. So hi Arindam, am I audible to you? Yes, yes, yes. Good evening. Okay, good evening, good evening. Fine. Can you introduce yourself if you are comfortable? I think I know you are in Absolutely. factory. So just I'm at work right yeah, now. No, no, no. Not an issue, but I just don't have a system right now. no, don't worry. No, It's okay. no need of system. Just you can listen from mobile. There is no So my practice. name is Mhm. Yes, yes. my Go name ahead. is Arindam Banerjee. I'm presently. Am I audible? Yeah, yeah. You are audible. Absolutely. I'm working as an operational engineer in power plant. I have an experience of 7 years. Mm-hmm. Presently, I'm working in Kharagpur. I'm located in Kharagpur. So I'm Okay, fine. looking after boiler and power. Okay, fine. So you, as far I understand, you have 7 years of experience. So in your industry, you are using Yes, SAP. yes, yes. We are using SAP, but I'm not well familiar to it. Okay, fine. I So don't have much Mhm. exposure to it. Fine, fine. Don't worry about it. But I know, yes, we do lot of things, lot Okay, of stuff to do. fine, fine, fine. So can you tell me what is your goal? Your goal is using SAP in your industry itself, or your goal is become a SAP plant maintenance consultant who are working in IT industries like that? Basically, I want to be a PM plant maintenance consultant, Okay, fine. So don't worry. and that is industry oriented. Fine, fine. Okay, fine. Enough introduction. You have. Don't worry. We have design course like that. After completing the course, you are able to crack the plant maintenance consultant interview. So you know all the things related to plant maintenance. We designed the course from like basic to pro. So be patient. First we cover clear master data, then transactional data, then business processes, then configurations, and all the things. So what I require from you, attend class regularly, done the practice regularly. Our structure is like before means after starting the class every 10 minutes we are taking your doubts from last sessions, and then we'll start the class. We'll provide you recorded session also. This session is also we are recording, and we are providing to PPT. In that PPT there is a screenshot also of each and every step, so you can follow that and try to make the data in the system yourself. So don't worry about that. Okay, And about the that time that will, yes, yes. And yes, yes. one more thing about the timing. So don't worry. I know everyone is working, and I have the lot of students. They are working and learning. So there is some more flexibility time. If you miss some lectures, so don't worry. Continuous batches are going on. If you miss some topics, so I will add in that batches. But one or two topics you miss, then I will add. If you tell me 10 topics I have missed and you take it again, so that is not practically possible. Correct? But still I give you surety your all the syllabus will covered, so don't worry about that. Just follow the instruction. This is the only one things I can tell you. Okay. I don't have an issue that you have mentioned that you will provide all the PPTs and screenshots will be added over there. So Yes, therefore, I will have yes, no yes. problem with And that. still if you have a problem, so you can ping me in a group whatever. I am see I am also working. I am working as sorry, I forgot to give my introduction. I am working as a functional lead in one of the IT industries, SAP PM. So many people are working below me also. So many consultant are there. I have so many implementations experience, rollout experience, like support project experience, integration project experience, brownfield, bluefield. So don't worry about the content teaching, but just follow the things. Okay. So we'll provide you the previous year questions as well, but at the completion of the course, study material as well, but at the completion of the course. Okay. So fine. Just just follow. Okay. Fine. So our today's topic is the like function location. So we are taking like a function location. Function location is nothing but a location in your organizations. Okay. So
it's a hierarchical structure that represent where equipment installed in the plant. Okay, that we already covered. The structure, like first the plant, below the plant there is a production area, below the production area there is assembly line, below the assembly line there is some drilling machines, and below that, inside that drilling machine, there is a one of induction motor. So this first line indicate like that. It's a hierarchical structure that represent where equipment is installed. Have you comfortable with Hindi as well, correct? Yes, absolutely. I'm very Okay. much comfortable. ओके फाइन. तो ये इतना ही बताता है स्लाइड, ज्यादा कुछ नहीं है कि इक्विपमेंट किधर इंस्टॉल किया है, बट स्ट्रक्चरल वे में जाना पड़ेगा. फर्स्ट फैक्ट्री आएगा, देन प्रोडक्शन एरिया, देन असेंबली लाइन, देन ड्रिलिंग मशीन, और उसके बाद ड्रिलिंग मशीन पे इंडक्शन मोटर लगा हुआ है. तो इन दोज इंडस्ट्री वेयर देर इज नो एसीपी, तो वो स्क्रैच से जब अपन चालू करेंगे एज एसीपी पीएम कंसल्टेंट, तो अपना काम क्या रहेगा? तो अपने को पहले उनका इंडस्ट्री का सर्वे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई इनके इधर, इनका सपोज वन ऑफ द फैक्ट्री प्लांट है, उसका XYZ प्लांट कोड है, उसमें कितने प्रोडक्शन एरियाज है, कितने डिविजन है, कितने सब डिविजन है, कितने असेंबली लाइन है, करेक्ट है, तो उसमें कितनी मशीन है, ये सब चीजें अपने को पहले एसीपी सॉफ्टवेयर में मैप करनी पड़ेंगी. ओके, देन ओनली वी कैन एबल टू वर्क ऑन द एसीपी. आपके इंडस्ट्री में भी जो जब ये सब चीजें रही होगी, तब कंसल्टेंट ने ये सब चीजें बनाई होगी, तभी ये चीजें आपके सिस्टम में आई है, करेक्ट? सो फॉर दैट वी शुड हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर इंडिकेटर. इसका नाम ही बता रहा है कि भाई एक स्ट्रक्चर है, उसको इंडिकेट करता है स्ट्रक्चर पर्टिकुलर चीज को, तो ऐसा स्ट्रक्चर इंडिकेटर अपने को बनाना है. ओके, तो ये जो दिख रहा है XXX, XSS, XXXN, XXAN, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एडिट मास्क. इसको आप एक ढांचा बोल सकते हो कि भाई ये हमने एक ढांचा बना दिया, इसके अंदर ही आपको चीजें डालनी है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ इंटरव्यू क्वेश्चन कि व्हाट इज द एडिट मास्क. इंटरव्यू आस्क यू व्हाट इज द एडिट मास्क. सो XSS दिख रहा है, तो इसका फुल फॉर्म आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा. सो X का मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिकल. व्हाट इज द अल्फा न्यूमेरिकल? तो सिंपल चीज, X के नीचे जो भी डालोगे वो लेटर्स और नंबर एक्सेप्ट कर लेगा. न्यूमेरिकल जस्ट न्यूमेरिक नंबर एक्सेप्ट करेगा. अल्फाबेटिक जस्ट अल्फाबेट एक्सेप्ट करेगा A के नीचे. और यस, सम इंडस्ट्री वांट सम स्पेशल कैरेक्टर. देखो आउटसाइड इंडिया इंडस्ट्री वो कुछ भी मांगते हैं, तो ऐसे मैंने फंक्शनलिटी दी है भाई, आप यस यूज कर लो, फिर आप हाइपन लगा लो, डैश लगा लो, इट्स यूर चॉइस. करेक्ट है? एनी डाउट इन इट बोथ ऑफ यू? नो सर. ओके, डाउट रहेगा, कुछ भी सिली डाउट रहेगा, देयर इज नो इशू, यू कैन जस्ट आस्क, आई विल करेक्ट यू. ओके फाइन. तो नाउ एसीपी प्रोवाइडेड सम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. तो ये एसीपी ने इतना स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है. ये जरूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री में सेम स्ट्रक्चर होगा. देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहा तो उसमें ज्यादा हायरार्की होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहा तो उसमें कम हायरार्की होगी. So depend upon industry, we should have to select the points. So yeah, this is the standard. Like first plant will become, below the plant there is a location, like we can say location is a utility area, substation area. After that there is a sub location. After that there is a plant section. After that there is a planner group. So what is a planner group? Planner group is a simple thing. It's a group of people or department who are responsible for planning activities. So this is nothing but the planner group. So what are the groups? Electrical team is nothing but one of the planner group. Electrical maintenance team, this is one of the planner group. Mechanical maintenance team, this is nothing but a planner group, because electrical maintenance team is responsible for maintenance activities related to electrical. So we can say that electrical maintenance team is a planner group. Department, you know, some departments in the industry, some assembly lines, some superior equipment. Okay, superior equipments is nothing but say for example, this is a drilling machine. So drilling machine is one of the equipment. Yes or no? Yes sir. Yes. So inside the drilling machine there is an induction motor. So for that induction motor, drilling machine is a superior because it is installed inside. So drilling machine is a superior equipment and induction motor is a equipment. करेक्ट है, मतलब ये उसका बड़ा भाई है, सिंपल. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर. सो नाउ इसको और फाइन ट्यून करते हैं, नीचे जाके अपना इंडस्ट्री में जो जो लगने वाला है वो उठाते हैं. भाई हमारी इंडस्ट्री में प्लांट है,
सपोज आप एज ए कंसल्टेंट एक इंडस्ट्री में गए, आपने देखा उधर प्लांट है, उधर लोकेशन है, उधर प्लांट सेक्शन है, प्लानर ग्रुप है, सब इक्विपमेंट इतनी ही चीज है। उधर सब लोकेशन नहीं है, निग्लेक्ट कर दिया। उधर डिपार्टमेंट नहीं है, निग्लेक्ट कर दिया। उधर असेंबली लाइन नहीं है, निग्लेक्ट कर दिया। ये सारी चीजें हैं, ये अपन ने उठा लिया, करेक्ट है। और लास्ट में अपन इक्विपमेंट लगाएंगे। अभी आज इक्विपमेंट नहीं सीखेंगे बिकॉज इक्विपमेंट इज वन ऑफ द मास्टर डेटा, इसको सिखाने के 1 घंटा लगता है। तो आज खाली अपन सीख रहे हैं फंक्शन लोकेशन, करेक्ट है? यस और नो? एनी डाउट? Yes. दिस इज वेरी सिंपल। नाउ इसके लिए ये जो चीजें ऐसे ही के ऐसे एसएमए में अपन नहीं डालेंगे कि ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया प्लांट है लोकेशन है, नहीं। एसएमए में डालने का एक तरीका होता है, मतलब सिस्टम में डेटा फिल करने का एक तरीका होता है। तो कैसे? तो अब एज अ कंसल्टेंट अपन एक एडिट मास्क बनाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट एडिट मास्क। जैसे 4 टाइम एक्स 3 टाइम एक्स 4 टाइम एक्स 3 टाइम एक्स 4 टाइम एक्स ऐसे दिख रहा है। एक्स के जब आप एस भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, एन भी ले सकते हो। दिस इज डिपेंड अपॉन द क्लाइंट। आपका क्लाइंट को क्या चाहिए, पहले उनको मीटिंग करके पूछना पड़ता है। भाई हम एक बार स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक बार बन गया वो तो बन गया, तो आपको वही फॉलो करना है। बोलो आपको क्या क्या लेना है। इफ दे वांट, वो बोलेंगे कि हमको इस लास्ट में यन चाहिए, तो अपन यन देंगे। बट यन देने के बाद यन के नीचे फिर अपन नंबर ही डाल पाएंगे, लेटर नहीं डाल पाएंगे, ये इनको बताना है, करेक्ट है। बट फॉर सेपर साइड अपन एक्स लेते हैं बिकॉज एक्स के नीचे अपन लेटर भी डाल सकते हैं और नंबर भी डाल सकते हैं। यस और नो? सो दिस इज नथिंग बट अ एडिट मास्क। अभी सेम चीज अपन थोड़ा फाइन ट्यून करके अलग स्लाइड में जाएंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये समझना इंपॉर्टेंट है, चीज बड़ी नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जाएंगे तो देखो सेम ये इग्नोर इट। सेम एग्जांपल लो, प्लांट ले लिया, लोकेशन, प्लांट सेक्शन, प्लानर ग्रुप एंड सब इक्विपमेंट। ये चीजें अपने को एसएपी में आज बनानी है। तो हाउ टू मेक इट? सो व्हाट इज प्लांट? प्लांट मतलब प्लांट ही होगा। तो लोकेशन मतलब क्या रहेगा? सबस्टेशन रहेगा, यूटिलिटी रहेगा, नहीं तो मशीन शॉप रहेगा। मैं थोड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है, तो लोकेशन मीन्स मशीन शॉप पकड़ लो, ओके। उसके बाद प्लांट सेक्शन, तो मशीन शॉप के अंदर क्या आएगा? फिर मोल्डिंग मशीन आएगा, ऐसा एक एग्जांपल ले लिया। उसके बाद प्लानर ग्रुप, आई ऑलरेडी टोल्ड व्हाट इज अ प्लानर ग्रुप। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्विंग इन द प्लानिंग एक्टिविटी। सो वी कैन टेक इलेक्ट्रिकल एज अ पैनल ग्रुप। आपको मैकेनिकल लेना है तो मैकेनिकल ले लो, फिर ले लेंगे एमईसी, करेक्ट है। मैकेनिकल डालेंगे, यस सर, करेक्ट। यस। देन इसके बाद आएगा सब इक्विपमेंट। तो सब इक्विपमेंट मोल्डिंग मशीन लिया है, ओके, मोल्डिंग मशीन लिया है, ठीक है, मोल्डिंग मशीन। तो अपन लेंगे मोल्डिंग मशीन 1 और बाद में लगाएंगे इक्विपमेंट। वो कल का टॉपिक होगा कि भाई मोल्डिंग मशीन 1 में 4 इंडक्शन मोटर लगा है, तो इंडक्शन मोटर 1, इंडक्शन मोटर 2, इंडक्शन मोटर 3 और इंडक्शन मोटर 4। तो उसके बाद में लगेंगे, पहले इसके ऊपर का चीज अपने को बनाना पड़ेगा, करेक्ट है। नाउ इसके लिए फिर ये तो बन गया, ये ऐसे नाम नहीं डालेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर इंडिकेटर बनाएंगे, जैसे मैं बोला था स्ट्रक्चर इंडिकेटर। सो अपन एक स्ट्रक्चर इंडिकेटर बना लेंगे, लाइक 4 टाइम एक्स 3 टाइम एक्स 4 टाइम एक्स 3 टाइम एक्स 4 टाइम। यही स्ट्रक्चर में अपन ये सारी चीजें बिठाएंगे शॉर्ट फॉर्म डाल के, करेक्ट है। तो ये देखो, और एक चीज समझ लो कि कौन से भी इंडस्ट्री में एक 4 डिजिट का प्लांट कोड होता है। सपोज एक टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के 10 प्लांट है। तो टाटा मोटर का एक प्लांट जमशेदपुर में है, एक प्लांट वी कैन से दैट इन बॉम्बे, वन प्लांट वी कैन से दैट इन एमपी, वन प्लांट वी कैन से दैट इन साउथर्न एरिया। So each plant having a plant code, 4-digit plant code. Okay. Anyone know the plant code in your industry? You can tell me. नो सर। Okay. Arnav, you आपने काम किया, आपको plant code पता है? Sorry. जो plan अरिंदम। काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, absolutely. कोई 4 डिजिट का प्लांट, Audible? या यू ऑडिबल, कोई 4 डिजिट का प्लांट कोड होगा, राइट? सो 8908. हाँ, ये होगा। तो एक एग्जांपल के ले लेते हैं अपन प्लांट कोड 1010, ठीक है। अरे यार व्हाट हैपनिंग, 1010 एक प्लांट कोड ले लेते हैं। 1010 प्लांट कोड है, ठीक है। तो प्लांट इज व्हाट 101। 1010 क्यों डाला? बिकॉज अपन ने स्ट्रक्चर लिया है एक्स, और एक्स रिप्रेजेंट व्हाट? एक्स रिप्रेजेंट व्हाट? लेटर्स एंड नंबर, करेक्ट।
तो 1010 डाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने को मैप करना है लोकेशन, तो लोकेशन क्या है, मशीन शॉप। मशीन शॉप के लिए कितना डिजिट दिया है, 3 डिजिट दिया है। तो मशीन शॉप को शॉर्ट फॉर्म में कैसे डाल सकते हैं, MSH डाल सकते हैं, राइट, Yes. करेक्ट। देन आफ्टर प्लांट सेक्शन, तो Sir, I have a question. यस यू कैन आस्क। My question is that edit map structure is 4-3-4-3-4. So this is the basic structure. We will always have 4-3-4-3-4 everywhere. See, this is not compulsory to take this structure. आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जांपल लाइक आप कुछ भी ले सकते हो, you can take here real मतलब मैं इसको 5-4-5-4-5-4 भी ले सकता हूँ. yes 5-3, you 5-3, you 5-3. can take as our industry, but फिर चीजें बल्कि हो जाएंगी, अच्छी नहीं दिखेंगी, स्ट्रक्चर वे में नहीं रहेंगी, दैट विल डिपेंड अपॉन क्लाइंट। वो ये अपन खुद सी, ये एज अ कंसल्टेंट अपन खुद डिसाइड नहीं करेंगे, विल टेल टू क्लाइंट कि उनको क्या चाहिए। कल को वो बोलेंगे भाई हमारा ऐसे ऐसे नाम का मशीन है उसमें बिठा दो, तो कैसे बिठाओगे, उनको बोलोगे भाई ये मेल पे AML लिया है, एक ही बार बनता है, फिर आप बनाओ, आपको क्या करना है, हम ऐसे बना के दिए। बिकॉज right now you are able to think about the consultant only, not a industry person। consultant की तरह सोचना शुरू करो पहले फर्स्ट डे से। तो ये अपन सेफ साइड में रहेंगे ऑलवेज, बिकॉज फिर अपने को ही उसका सपोर्ट टिकट आएगा कि भाई हमारे इधर नया मशीन इंस्टॉल हो गया, फिर उसका नाम ही हमको समझ में नहीं आ रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दैट विल इम्पैक्ट इन बिजनेस। ओके फाइन। सो नेक्स्ट इज अ प्लांट सेक्शन। सो प्लांट सेक्शन क्या है, तो मोल्डिंग मशीन है। कितना कैरेक्टर दिया है, 4 कैरेक्टर दिया है। तो बेटा AML DM कर दिया, आपको कुछ अलग लगे तो आप अलग बताओ। देन प्लानर ग्रुप। सो प्लानर ग्रुप क्या है, मैकेनिकल। कितना डिजिट ले सकते हैं, 3 डिजिट। तो MEC ले लेते हैं उसके लिए, ये हो गया मैकेनिकल। देन आफ्टर सुपीरियर इक्विपमेंट, व्हाट इज सुपीरियर इक्विपमेंट, दिस इज मोल्डिंग मशीन, 4 कैरेक्टर्स, MLD1, करेक्ट। तो 1 भी अपन ले सकते हैं बिकॉज वी पुट X हियर, N भी डाल सकते हैं, पर जनरली सेफ साइड टेक X। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फंक्शन लोकेशन है, ये अपने को SAP में ही बनाना है। दिस इज टुडेज गोल। ओके, सो हाउ टू मेक इट। फर्स्ट अपने को पहले क्या बनाना है, स्ट्रक्चर इंडिकेटर बनाना है। सो हाउ टू मेक अ स्ट्रक्चर इंडिकेटर, फॉर दैट देयर इज अ T कोड। अभी थोड़ा SAP की स्क्रीन पे चलते हैं। इफ समवन डोंट नो द स्क्रीन, सब थोड़ा नेविगेशन बताता हूँ, देन वी स्टार्ट। ओके, लेट मी मूव टू स्क्रीन। आपका नाम यार मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, अरिंदम, आपको पता है ठीक है, पर वासु इतना फैमिलियर नहीं है, दैट आई विल टेल यू सम बेसिक्स। ओके, you both guys just remember these 2 letters 1145, okay, this IP. For your class I am always using this IP. Okay, Basically 1145, no sir? yes, 1145 you just remember, because see I have so many batches, so which server which batch data is there, so there is so much confusion. You both guys just remember 1145. When I'm starting the server, just remind me. Okay, so we are learning the latest version SAP S/4HANA, correct? 221. Login on it. Fine. So Vasu, this is the basic SAP screen. Okay, तो Yes, इस sir. स्क्रीन में क्या यूज करना है यही बताऊंगा, और क्या नहीं यूज करना है ये बताऊंगा। तो धीरे धीरे क्या यूज करते जाना है वो भी बताऊंगा। सो डोंट वरी, जो जितना मैं बोलते जाऊंगा उतना ही बटन और उतना ही की का यूज करना है। डोंट ट्राई टू लर्न अदर थिंग्स। ओके, मैं टाइम टू टाइम सब बताऊंगा। सो अभी ये जो विंडो दिख रहा है, ये कुछ डेटा डालने के लिए है। सो इसमें जो डालेंगे उसको अपन T कोड बोलेंगे। व्हाट इज मीन बाय T कोड? T कोड इज अ ट्रांजैक्शनल कोड, मतलब एक कोड रहेगा। ये कोड मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं, एक जस्ट 4-5 डिजिट का कोड रहेगा, वो डालने से एक अलग स्क्रीन ओपन होगा। एंड दिस कोड आर वेरी सिंपल, हाउ टू रिमेम्बर दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसमें ऐसा कुछ डालेंगे। नेक्स्ट रहेगा, ये थोड़ा बैक करने के रहेगा,
ये थोड़ा ज्यादा बैक करने के लिए रहेगा, ये कट करने के लिए रहेगा, ये बायनोकुलर दिख रहा है ये सर्च करने के लिए रहेगा, और ये जो स्टार वाला सिंबल दिख रहा है ये सेम विंडो नई ओपन करने के लिए रहेगा। कितना बटन्स बोला मैं? दिस 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 दिस, और ये सेव का सिंबल है, करेक्ट है, जो हाइड है। इतना ही बटन्स यूज करना है, डोंट यूज एनीथिंग ओवर हियर, डोंट यूज एनीथिंग ओवर हियर, कुछ भी यूज करना नहीं है, करेक्ट है, Yes. कुछ भी बटन दबाना नहीं है। नाउ वी आर पुटिंग टी कोड, some example, I will take some example, IW21. So always remember SAP प्लान मेंटेनेंस का टी कोड स्टार्ट होगा आई से, स्मॉल आई डालो कैपिटल आई डालो, देयर इज नो इशू। आई से मतलब प्लान मेंटेनेंस का 95% टी कोड आई से चालू होता है। सो IW21 ऐसा टी कोड डाला, और जैसे ही मैं कीबोर्ड का एंटर की दबाऊंगा एक अलग स्क्रीन ओपन होगा। ओके, सो ओपन इट, तो दिख गया चेंज पीएम नोटिफिकेशन करके एक अलग स्क्रीन ओपन हो गया, करेक्ट है। ये स्क्रीन से बैक जाना है, यू कैन यूज दिस ग्रीन बटन। सो दे आर आस्किंग सम फिल द मैंडेटरी फील्ड्स। ओके, आपके पास आपको कुछ पता ही नहीं है क्या भरना है, सो यूज दिस बटन। सो आ गए नहीं स्क्रीन पे, करेक्ट है। उसमें कुछ शॉर्टकट कीज भी है, वो भी मैं थोड़ा आगे जब जैसे लेक्चर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं शॉर्टकट कीज भी आपको बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, आज ही बताया सब तो फिर ध्यान में नहीं रहेगा। ओके, तो जस्ट इस पे टी कोड, अभी तो देखो सिंपल गेम जैसा है, इधर टी कोड डालना है, नया स्क्रीन ओपन करना है, उस स्क्रीन में जो बोलेगा वो डेटा भरना है और आगे चलना है, सिंपल थिंग, करेक्ट है। सो दिस इज जस्ट अ नेविगेशन की, डोंट वरी अबाउट द अदर कीज। ओके फाइन, सो नाउ वी शुड हैव टू मेक द स्ट्रक्चर इंडिकेटर। ऐसा एक्स वाला पहले बनाना है, फिर उसके नीचे अपन ऐसा बनाएंगे, मतलब ये चीज अपन ऐसे में बनाने वाले। तो ऐसा बनाने के लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा, तो ये टी कोड है, देखो ट्रांजैक्शन कोड SPRO, ये ट्रांजैक्शन कोड डालेंगे और देखेंगे कि भाई अपन ने एक्स एक्सेस करके एडिट मार्क्स बना पाते हैं कि नहीं। ओके, सो व्हाट टी कोड वी शुड हैव टू पुट, SPRO। इसका सिंबल क्या है, डोंट वरी, जस्ट प्रेस एंटर, यू कैन सी द कस्टमाइजिंग। तो ये SPRO टी कोड यूज किया जाता है कस्टमाइजेशन के लिए। ओके, सो ये जो स्पेक का सिंबल दिख रहा है ACP रेफरेंस IMG मींस इम्प्लीमेंटेशन गाइड। इम्प्लीमेंटेशन गाइड मींस ये क्या हो रहा है, जिस भी इंडस्ट्री में नया ACP इंस्टॉल करना है, ACP इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए ये अपने को गाइड करेगा, सिंपल। तो जस्ट क्लिक ऑन इट, तो बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन विंडो। तो इसमें हर एक मॉड्यूल के लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे MM मॉड्यूल के लोग करेंगे, PP मॉड्यूल के लोग करेंगे, QM मॉड्यूल के लोग करेंगे, फाइनेंस मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल, सब लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हर एक के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये नोड है, इसमें अंदर बहुत सब नोड बहुत सारे नोड है, ये खुलता ही जाएगा, देखो। तो ये अपना जो प्लान मेंटेनेंस रिलेटेड है, ये चीजें अपन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सो डोंट वरी। सो अपना मॉड्यूल कौन सा है, PM मॉड्यूल। सो ढूंढो इधर प्लान मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विसेज, बाकी चीजों से अपना कुछ लेना देना नहीं है, करेक्ट है। सो प्लान मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विसेज का नोड ओपन करेंगे। इसमें वी आर लर्निंग द मास्टर डेटा फर्स्ट, करेक्ट है। पहले सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी आर वर्किंग इन SAP। सो इसमें पहले मास्टर डेटा में जाएंगे, देन टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। सो फंक्शन लोकेशन इज नथिंग बट अ टेक्निकल ऑब्जेक्ट, क्या है आगे जाके थोड़ा बहुत समझ जाओगे, डोंट वरी। सो ओपन इट। नाउ विच टॉपिक वी आर लर्निंग, बोलते जाओ, फंक्शन लोकेशन पार्ट। तो इधर फंक्शन लोकेशन दिख रहा है, यस दिस इज अ फंक्शन लोकेशन। सो ओपन इट। तो इसमें दिख रहा है स्ट्रक्चर इंडिकेटर बनाने का किधर, सो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट स्ट्रक्चर इंडिकेटर। क्रिएट। सो देखो अपने को सिंपल स्ट्रक्चर इंडिकेटर बनाना था, तो ये टी कोड यूज किया और ये वाला पाथ फॉलो किया। पाथ का आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है, करेक्ट है। तो ये ऐसा पाथ फॉलो करना है, यस वी आर प्रोवाइडिंग स्क्रीनशॉट एज वेल, सेम पाथ यू कैन फॉलो। ये धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे यू आर ऑटोमेटिकली गेट रिमेम्बर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अभी के लिए क्या हुआ आवाज नहीं आ रहा मुझे। Yes, SPRO is universal. This is implementation guide.
इट्स अ टी कोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड, और इसका राइट खाली कंसल्टेंट को ही रहेगा, प्लांट लेवल पे किसको नहीं रहेगा यूज करने का। आपको ट्रांजैक्शन यूज भी नहीं करने देगा। आप आपके कंपनी में जाओगे, एसपीआरओ डालोगे, वो बोलेगा देयर इज नो ऑथराइजेशन। ओके, हाँ, आपके लर्निंग सर्वर में आप सीख पाओगे। सो फाइन। सो इधर गए, इधर जो वॉच वाला सिम्बार है आईएमजी एक्टिविटी, उस पर क्लिक करना है। इधर स्पेक्ट वाले में गए तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, तो इतना पढ़ते बैठना पड़ेगा भाई, ये पढ़ो और फिर बनाओ उसको, इतना टाइम नहीं है अपने पास। सो गो बैक, जस्ट क्लिक ऑन इट। तो एक नया विंडो ओपन हो गया। नया विंडो क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस रखो जो भी टी कोड ज्यादा ऊपर वाला हेडलाइन पढ़ने का। ओके, देन धीरे धीरे आप फैमिलियर होते जाओ। तो वो क्या बोल रहा है, फंक्शन लोकेशन स्ट्रक्चर इंडिकेटर का स्क्रीन है भाई ये, करेक्ट। तो इधर ये देखो, स्ट्रक्चर इंडिकेटर का शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, और एडिट मास्क है, जैसे एक्स बनाया, बहुत सारे बने हुए हैं। देखो, अपन बने हुए ले सकते हैं, नहीं तो नया भी बना सकते हैं। चलो अपन नया बनाते हैं अपने लिए, करेक्ट है। सो नया बनाने के लिए देखो, इंडस्ट्री में ये एक ही बनेगा एक टाइम में, किसी किसी इंडस्ट्री में दो भी बन सकते हैं, बट दिस इज डिपेंड अपॉन देयर बिजनेस प्रोसेस, करेक्ट है। तो इतने सारे नहीं बनेंगे। सो बट दिस इज लर्निंग सर्वर, वी आर मेक डिफरेंट। ओके, एनीवन टॉकिंग एनीथिंग, कुछ बोल रहे हो? नहीं नो नो सर। ओके फाइन। तो इसमें नया बनाना है तो गो टू न्यू एंट्रीज, click on it. So new entries, detail added entries. So now they are asking str indicator means structure indicator means एक short form डाल दो, कुछ भी डाल दो। So we can put st, करेक्ट है, और कुछ भी एक नाम बोल दो जो अपने ध्यान में रहे, जो स्ट्रक्चर इंडिकेटर का एक शॉर्ट फॉर्म अपने को बताएगा। किसी का नाम बोल दो आप में से, अर्नव का ए भी ले लेंगे, चलो ओके, हाँ ये भी ले लिया। तो अपन बोलेंगे स्ट्रक्चर, नहीं तो इधर देखो रियल टाइम में प्लांट का ही नाम लेना है, तो रियल टाइम में एसटी टाटा मोटर्स रहा तो टीए लो, करेक्ट है। ऐसा आपका खुद का नाम नहीं लेना है, ओके, टीए लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो ये जस्ट में बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो डुप्लीकेसी ना हो इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, ओके, और ये ध्यान में रखना है। तो वी कैन पुट लाइक स्ट्रक्चर इंडिकेटर फॉर टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ऐसा डाल सकते हो, नहीं तो आपका नाम भी डाल सकते हो, यू कैन मेक। पर जिस इंडस्ट्री में डाल बोल रहे हो उनका कॉपीराइट रहता है, तो उसके जैसे डालना है अपने को, करेक्ट है। नाउ ये जो चीजें भरने लायक हो गई, नाउ नेक्स्ट वो ऊपर में शॉर्ट फॉर्म है और नीचे जो है वो फुल फॉर्म है, ओके ओके करेक्ट है, इसी का है। उसी का है। ठीक है। आप ये भी डाल दो, स्ट्रक्चर फॉर ये भी कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट ये रिमेंबर और आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए रहता है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रक्चर, तो दे आर आस्किंग द एडिट मार्क्स। तो एडिट मार्क्स बनाया अपन ने, बनाया कि नहीं बनाया, क्या रहता है एडिट मार्क्स, एक्स वाला एडिट मार्क्स रहता है, तो ये बना के रखा है, देखो ये अपन बनाने वाले हैं ना, तो एडिट मार्क्स Yes, बना sir. के रखा है, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट देयर, सेम। नहीं तो फिर बनाएंगे हाथ से, डालो 4 टाइम एक्स डालो, 1 2 3 4 डैश 1 2 3 डैश 1 2 3 4 डैश 1 2 3 डैश 1 2 3 4 डाल दिया, सिंपल। आपको जो डालना है यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, बट एज पर कंसल्टिंग विद बिजनेस यू शुड मेक इट। बट ये बनाना मतलब ऐसे डायरेक्टली अपनी मर्जी से नहीं बनाते, करेक्ट। इन रियल प्रोजेक्ट यू शुड हैव सम much more approvals, much more high level meetings, so that will decide, because this is the structure of the industry. okay, SAP का स्ट्रक्चर रहता है, SAP के प्रोजेक्ट्स सीआरस में रहते हैं, तो वो काम भी फिर उतना हाई लेवल का होता है, करेक्ट है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अ हायरार्की लेवल। तो हायरार्की मतलब क्या बता रहा है, कौन सा बड़ा है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोवाइड हायरार्की आफ्टर एवरी लास्ट डिजिट। मतलब कैसा है, सबके लास्ट एक्स के, मतलब एक्स रहो ए रहो, सबके लास्ट जो डिजिट आएंगे उसके नीचे ही हायरार्की प्रोवाइड करनी है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो स्पेस 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 1, दिस इज द फर्स्ट हायरार्की, करेक्ट। स्पेस 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 2, ये रॉन्ग हो गया, ये देखो 2, करेक्ट, लास्ट एक्स के नीचे ही आना चाहिए। स्पेस 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 3, स्पेस स्पेस स्पेस, ये देखो 4, ये रॉन्ग हो गया, ये लास्ट के नीचे आया क्या, डैश के नीचे आया, तो रिमूव इट, नहीं करेक्ट। अभी बराबर है, स्पेस Yes, स्पेस स्पेस 5, तो ये नहीं होना चाहिए इसलिए मैं बताया।
ये लास्ट एक्स के नीचे ही हायरार्की आना चाहिए, दैट विल बी एक्सपेक्टेड इन द सिस्टम। तो एडिट मार्क्स डाल दिया, हायरार्की लेवल्स डाल दिया। अपन ने क्या बताया सिस्टम को कि भाई ये फर्स्ट हायरार्की, ये इसमें जो कोडिंग रहेगा सेकंड हायरार्की, इसमें थर्ड हायरार्की, फोर्थ हायरार्की, फिफ्थ हायरार्की, ऐसा सिस्टम को बता दिया। बस बात खत्म। सेव इट। सेव करते टाइम एक ऐसा बॉक्स ओपन होगा, इसको डायरेक्ट इग्नोर मार। इग्नोर मीन्स दिस इज, ये क्या है, फिर क्यों इग्नोर मारना है, ये रहता है टीआर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ये जब अपन कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तब इसको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए जानने का जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। इट विल हेल्प टू ट्रांसफर द चेंजेस फ्रॉम डेवलपमेंट सर्वर टू क्वालिटी सर्वर टू प्रोडक्शन सर्वर। तो वो चीजें बाद में आएंगी, थोड़ा हाई लेवल की चीजें, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट ऐसा जब डायलॉग बॉक्स आता है, ग्रीन टिक करके आगे बढ़ना है, ओके, कंटिन्यू करना है। देन नीचे मैसेज आएगा डेटा वॉज सेव। तो ये तो बना लिया अपन ने, तो गो बैक जाएंगे और देखेंगे अपना दिख रहा है कि नहीं। देखो दिख रहा है, ऐसा नो बोलते Yes, जाओ। sir. दिख रहा है स्ट्रक्चर Yes, yes. इंडिकेटर, ये अपना दिख रहा है। मतलब सिस्टम में अपन ने एक स्ट्रक्चर तो बना लिया, एक कंपनी का एक ही बनेगा, और किसी किसी का 2-3 बन सकता है, बट दिस इज अपॉन देयर एप्लीकेशंस, देयर कॉम्प्लेक्सिटी। पर जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक ही इनफ होता है, इट्स डिपेंड, ज्यादा भी बना सकते हो। तो गो बैक, प्रैक्टिस के लिए इस नाम है, गो बैक, इनिशियल स्क्रीन पे आ गए, करेक्ट है। अपन ने फर्स्ट गोल अपना अचीव कर लिया कि वी शुड हैव टू मेक द स्ट्रक्चर इंडिकेटर, करेक्ट है। बनाना कैसे है देखो, इधर दिया है, एक एग्जांपल लिया है, तो यू कैन मेक लाइक नाउ। आवर टॉपिक इज फंक्शन लोकेशन। तो पहले अपने को तो फंक्शन लोकेशन बनाना पड़ेगा, मीन्स ये वाली लोकेशन अपने को बनानी पड़ेगी, ये वाली लोकेशन। अब ये स्ट्रक्चर तो बन गया, सो व्हाट, हाउ वी कैन मेक दिस, तो इसके लिए टी कोड लगेगा। So what is the T code? So you can see that to create a FL means function location. So to create a FL, the T code is IL01. Correct है? Yes or no? Yes, sir. Yes. So इसको ध्यान में कैसे रखने का? बहुत सारे T code आते जाएंगे। So देखो, मैं already I told you the plant maintenance T code start from I. So location का L उठा लो और इधर लगा दो और 01 लगा दो। So for to create a function location we use the T code IL0. सेम चीज रहेगा, उसमें कुछ गलती होगा, चेंज करना है तो IL02, उसको खाली डिस्प्ले करना है, मतलब एडिट मोड नहीं, खाली डिस्प्ले मोड है तो IL0 पे। तो एक ही ध्यान में रखो, बाकी ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाए। ओके, सो नाउ वी आर मेकिंग दिस फंक्शन लोकेशन बाय यूजिंग दिस टी कोड IL01। तो चलो सिस्टम में क्या टी कोड डालू मैं, IL01. करेक्ट, IL01 टी कोड डाल दिया, कीबोर्ड से एंटर किया, क्या बोला है, नाम पढ़ने का, क्रिएट फंक्शन लोकेशन इनिशियल स्क्रीन। तो भाई फंक्शन लोकेशन बनाने का इनिशियल स्क्रीन आ गया। तो इसमें अपने पास अभी क्या डेटा है, क्या बना के रखा है अपन ने, कोई बता सकता है? हम लोग स्ट्रक्चर इंडिकेटर, स्ट्रक्चर इंडिकेटर बनाया। तो वो इधर फील्ड भी दिख रहा है, देखो ये फील्ड है, जो ब्लैंक बॉक्स आता है व्हाइट कलर का, दिस इज कॉल्ड फील्ड इन एसएपी। तो अपने पास स्ट्रक्चर इंडिकेटर ऑलरेडी बना है, तो अपन डाल देंगे। अदरवाइज देखो याद रहा, देखो अपने को ST ए भी ऐसा बनाया था, ये याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो यू कैन सर्च ओवर हियर, इधर क्लिक करो, सब स्ट्रक्चर इंडिकेटर आ जाएंगे। उसमें से अपन ने जो बनाया वो ढूंढो, कौन सा बनाया बताओ मुझे, ये बनाया, करेक्ट। हाँ सर, डबल क्लिक ऑन इट, आ गया ST अभी। तो जब इसको आप कीबोर्ड से एंटर करोगे अभी, तो बराबर एडिट मार्क्स और हायरार्की लेवल ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में आ जाएगा। करो एंटर, तो नाउ आई विल प्रेस एंटर, तो आ गया, ये एडिट मार्क्स आ गया जो अपन ने बनाया था, और हायरार्की लेवल भी आ गया जो अपन ने बनाया था, और नाम भी आ गया उसका, स्ट्रक्चर इंडिकेटर फॉर EB, और वी कैन से फॉर टाटा मोटर्स और एनी अदर इंडस्ट्री। और ऐसे भी अपने को क्या बता रहा है कि एंटर द फंक्शन लोकेशन, ऐसा वार्निंग दे रहा है कि भाई फंक्शन लोकेशन अभी आप एंटर कर सकते हो सिस्टम में। नाउ वी शुड हैव टू मेक द फंक्शन लोकेशन। तो फर्स्ट फंक्शन लोकेशन क्या रहेगा, इज अ प्लांट, करेक्ट, Yes, sir. प्लांट रहेगा। सो प्लांट को कोड रहेगा कोई, तो ये प्लांट है, प्लांट का कोड रहता है, तो अपन ने क्या कोड लिया 1010, ये अपना प्लांट है सपोज। तो
तो इधर डालेंगे 1010। भाई मेरे को ये 1010 वाला इंडिविजुअल फंक्शन लोकेशन बनाना है, करेक्ट है। ये डालने के बाद एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर किया मेरे को सिस्टम ने वार्निंग दिया, क्या दिया, फंक्शन लोकेशन 1010 ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका क्या मीनिंग है, मतलब ये किसी ने बना के रखा है। ओके, बना के रखा। किसी ने बना के रखा है तो अपने को वो नहीं बनाने देगा, तो अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए अपने को कुछ अलग लेना पड़ेगा देन, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिस सर्वर। तो 1015 ले लो, एंटर करो, सेम एरर, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सो वी कैन टेक एनीथिंग, 1051 ले लेते हैं, एंटर करो। अभी उसने अलग स्क्रीन ओपन कर दिया, बट ये 1051 को 1010 ही समझो। इसका डिफरेंस समझ में आया क्या सबको? यस सर। ये सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये देखो ये सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए अपने को नया बनाने नहीं दे रहा है। जब तक नया बनाओगे नहीं तो बनाना कैसे है, तो कैसे सीखोगे? ये तो ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट है। वंस वहाँ पे 1010 किया हुआ है ना, उसको फिर एडिट करना पड़ेगा। तो चेंज कर लो, दिस इज पीपीटी ओनली। ओके ओके ओके, ये तो आपको समझाने के लिए भाई। हाँ ठीक है। मैं क्या बोला, अपना प्लांट 1010 ही है इधर, मतलब जब रियल टाइम में काम करोगे तो इधर 101 रियल टाइम में सर्वर आपके पास क्रैच होगा ना पूरा, मतलब पूरा क्लीन सर्वर होगा ना, तो उधर कुछ भी डालोगे सिस्टम लेगा ही ना। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज अ लर्निंग सर्वर, इधर हर रोज कोई कोई कुछ ना कुछ बनाते रहता है। तो ये 1051 को 1010 थोड़े टाइम के लिए समझ लो, बाद में समझ जाओगे क्या चीज। ओके, नाउ इसको बोलो, ये क्या डिस्क्रिप्शन दोगे फिर? दिस इज अ प्लांट, राइट? तो कौन सा प्लांट है, तो बोलो, आपका इंडस्ट्री का नाम ले लेते किसी का। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बहुत बार ले लिया यार, दूसरा बोल। टाटा स्टील जगह। टाटा स्टील ले लेते हैं, चलो टाटा स्टील ले लेते हैं। स्टील का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? ओके ठीक है, टाटा स्टील ले लेते हैं। सो टाटा स्टील इज अ प्लांट, दिस प्लांट कोड इज अ 1010। इतना चीज समझना है, करेक्ट है। नाउ कैटेगरी इज यम, यम कैटेगरी रखनी है। तो यम क्यों रखनी है? बिकॉज यम इज अ स्टैंडर्ड, इतना ध्यान रखो। मैं जब भी वर्ड बोलूंगा स्टैंडर्ड तो वही लेना है। तो वही क्यों लिया, ये आपको धीरे धीरे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको रियलाइज होता जाएगा, करेक्ट है। तो क्योंकि अपन जो ऐसे भी सीखते हो स्टैंडर्ड ऐसे भी सीखते हैं, और कस्टमर को जो मतलब कस्टमर मीन्स कंपनी और क्लाइंट, उनको अपन स्टैंडर्ड ही सजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? 8-10 लेक्चर होने दो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ओके, तो डोंट वरी अबाउट, पहले सीख लो। हर एक फील्ड का नॉलेज इज इंपॉर्टेंट एंड हर एक फील्ड इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो। नाउ स्टेटस, सो व्हाट इज स्टेटस? CRTE। तो CRTE भाई क्या होता है? तो ये आई बटन पे क्लिक करो और देखो व्हाट इज CRTE मीन्स क्रिएटेड। नाउ क्या कर रहे हैं अपन? फंक्शन लोकेशन बना रहे हैं, करेक्ट है। सो दैट इज वाई स्टेटस इज अ क्रिएटेड। तो जैसे जैसे चीजें चेंज करते जाओगे वैसे वैसे उसका स्टेटस चेंज होता जाए। तो स्टेटस पे ध्यान रखा करो, ओके, कि कैसे चेंजेस हो रहा है स्टेटस में। फाइन, नाउ स्टेटस इज अ क्रिएटेड। देन इस फील्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज देता हूँ। ये जो दिख रहा है जनरल, लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, इन एसएपी दिस इज कॉल्ड अ टैब्स। इन चीजों को एसएपी में टैब्स कहा जाता है। और टैब्स के अंदर जो सपोज ऑब्जेक्ट टाइप है उसके अंदर जो व्हाइट बॉक्स है उसको फील्ड कहा जाता है। ये दो चीजें सबको, दोनों को क्लियर है आपको? यस सर। ये जो है दिस इज कॉल्ड अ टैब्स एंड ये जो है दिस इज कॉल्ड अ फील्ड। नाउ वी आर मेकिंग द प्लांट, कि आपका प्लांट अपन पहले एसएपी में बना रहे कि भाई आपका 1010 नाम का टाटा स्टील नाम का प्लांट है, जिसका प्लांट कोड 1010 है। ये अपन ऐसे में बना रहे। नाउ प्लांट को वेट होगा, प्लांट का इन्वेंटरी नंबर होगा, प्लांट का मैन्युफैक्चर होगा, पार्ट नंबर होगा, ये सब होगा क्या प्लांट का? नहीं होगा। यस सर। ये सब नहीं होगा ना, ये सब नेमप्लेट डेटा दिख रहा है, जैसे एक इंडक्शन मोटर का नेमप्लेट डेटा दिख रहा है, मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर, स्पेयर पार्ट। दिस इज नॉट यूज फॉर मेकिंग प्लांट। सो इग्नोर दिस फर्स्ट टैब जनरल, इसका अपने को फंक्शन लोकेशन बनाते टाइम जरूरत नहीं। ये सेम स्क्रीन इक्विपमेंट बनाते टाइम अपन यूज करेंगे, दैट टाइम इसका बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा।
So now while making the function location, ignore first general data screen. अभी आप बोलोगे सर इग्नोर ही करना है तो फिर उधर दिया, ये सर नो, ओके तो बोल सकते हो, बट देखो फंक्शन लोकेशन बनाने का स्टैंडर्ड स्क्रीन और इक्विपमेंट बनाने का स्टैंडर्ड स्क्रीन सेम ही होता है, डिपेंड करता है अपन कौन सा चीजें यूज कर रहे हैं। तो मैं जो बोलूंगा वो चीजें यूज करो, आप परफेक्टली बना पाओ। ओके, सो इग्नोर दिस जनरल डेटा स्क्रीन, डायरेक्टली गो टू लोकेशन। इसमें लोकेशन डेटा में बोल रहा है मेंटेनेंस प्लान। तो अपना प्लान क्या था, एनीवन टेल मी? प्लान कोड 1051 नो 1010 ये था। ये सेम अपन इधर आप इधर डालोगे जब रियल टाइम में प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो ना? इधर जो डालोगे उधर ही ये डालोगे, बट रियल टाइम में ये लर्निंग सर्वर है, आपको नया बना के दिखाना है इसलिए ये डालना पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो ये 51 को 10 अभी के लिए समझ लो सारा, 2 मिनट, डोंट वरी अबाउट। तो ये प्लांट का नाम आ गया है समथिंग प्लांट 1D, किसी ने बनाया होगा, नहीं तो टाटा मोटर समथिंग नेम्स आता है। तो प्लांट बना रहे तो खाली प्लांट डालना है, बाकी लोकेशन, रूम, प्लांट सेक्शन, वर्क सेंटर नो नीड टू फिल, बिकॉज पहले अपन प्लांट ही बना रहे तो ये चीजें थोड़ी ना डालेंगे। तो खाली प्लांट डालो, बाकी चीजें ऐसे के ऐसी छोड़ दो, आगे बढ़ो ऑर्गेनाइजेशन टैब। नाउ इधर देखो कंपनी कोड ऑटोमेटिकली आ गया, अपन ने भरा था? नहीं भरा था ना, इधर ही अपन ने भरा है ना, इधर ही डाला था, इधर में तो हाथ भी नहीं लगाया है, ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्लानिंग प्लान भी ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने तो भरा नहीं। तो ये क्यों आया? ये देखो प्लान बनाने का काम है ना एमएम टीम का रहता है, एमएम टीम मीन्स मटेरियल मैनेजमेंट टीम। वो प्लान का कॉन्फ़िगरेशन, ये प्लान ऐसे इजी नहीं बनता है, उसका बहुत सारा बैक एंड में सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो वो टीम पहले क्या करता है, बैक एंड में सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन करता है और अपने को एक कोड देता है, करेक्ट है? जैसे फ्रेश इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जिधर चालू होता है तो अपन जस्ट वो कोड को यूज करते हैं, वो अपन को अपने को कोड देता है। नाउ प्लान डाल दिया 1010, फिर ऑर्गेनाइजेशन टैब में गए, उधर ऑलरेडी कंपनी कोड और प्लांट आ गया, तो बाकी चीजें भरने का अपने को जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर मेकिंग द प्लान। बाकी चीजें जब टाइम आएगा तब भरेंगे। नाउ डायरेक्टली गो टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली आ गया अपना स्ट्रक्चर इंडिकेटर, उसका नाम आ गया। नाउ दे आर आस्किंग फॉर अ पोजिशन। तो ये प्लान का पोजीशन क्या है बताओ मुझे कोई? ये प्लान का पोजीशन क्या था? दिया था अपन ने नीचे पोजीशन 1 2 3 4 5। यस सर। तो प्लान का पोजीशन क्या था? 1 था ना, फर्स्ट प्लान, फर्स्ट इज द प्लान, राइट? यस सर। यस, तो इधर 1 डालेंगे। नाउ दे आर आस्किंग अस इंस्टॉलेशन स्पेसिफिकेशन। तो ये इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन अलाउड, इधर टिक रहेगा तो सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, और टिक नहीं रहेगा तो सिस्टम में क्या इम्पैक्ट रहेगा। ओके, ये मैं आपको बता दूं। अभी मैंने इधर टिक लगा दिया, मतलब इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन अलो कर दिया, तो इधर जाके समझेंगे। अभी मेरे को बताओ ये एग्जांपल में इक्विपमेंट में किधर लगा है, किसके बाद लगा है, ये बताओ। सिंपल चीज पूछ रहा हूं मैं, इक्विपमेंट किसके बाद लगाया है, पढ़ के बताओ खाली। करेक्ट, सब इक्विपमेंट के बाद लगाए। प्लान के बाजू में इक्विपमेंट लगाया क्या मैंने? नो सर। नहीं। तो सिस्टम में भी अपन जब प्लांट बना रहे तो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन अलो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू इंस्टॉल इक्विपमेंट डायरेक्टली बिलो द प्लांट फंक्शन लोकेशन, और कोई गलती से कर भी ना पाए इसलिए अपन ये टिक निकाल देंगे। तो भाई कोई गलती से भी नहीं लगा पाएगा, करेक्ट है? नाउ सिंगल इंस्टॉलेशन। सिंगल इंस्टॉलेशन क्या रहता है, देखो कौन सा भी लोकेशन है उसके नीचे इक्विपमेंट लगाना है तो एक ही इक्विपमेंट लगा पाओ। अभी मेरे को बोलो कल को वो बोलेंगे प्लान मतलब क्लाइंट बोलेंगे भाई हमारा और एक इक्विपमेंट लगाना है, अपन ने तो इधर सिंगल इंस्टॉलेशन बोल दिया, तो सिस्टम डायरेक्टली एरर करेगा कि भाई आपने फंक्शन लोकेशन बना, करेक्ट? तो फंक्शन लोकेशन बना टाइम सिंगल इंस्टॉल, पर ये दिया क्यों है फिर? तो सम स्पेशल केसेस समवन वांट कि भाई ये इतना स्पेशल है कि इधर मॉडिफिकेशन फ्यूचर में भी नहीं होगा, तो वो बोलेंगे तो अपन कर देंगे। ऑप्शन है, देखो एसीपी में बहुत सारे, एसीपी इज अ कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर, तो ये क्लाइंट के हिसाब से अपन चीजें चेंज कर सकते हैं। तो एसीपी ने ऑप्शन दिए, तो क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इधर कुछ भी नहीं लगाएंगे, खाली पोजीशन डालेंगे। हाँ यस, यू कैन आस्क। The
नहीं नहीं, इको आ रहा है, समझ में नहीं, थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके बोलिए। सर की प्लांट लोकेशन जो है वन जो डाले हैं पोजीशन में, तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर इंडिकेटर है, स्ट्रक्चर इंडिकेटर में हम लोग का प्लांट लोकेशन वन, प्लांट पोजीशन वन है, इसीलिए वन डाले ना करेक्ट 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 करेक्ट, पोजीशन जो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट लोकेशन, दैट इज व्हाई वी पुट द वन। प्लांट है, उसके हाँ हाँ उसके बाद, हाँ पहले प्लांट है, उसके बाद प्लांट लोकेशन है, करेक्ट है। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, आपका होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अभी अपन प्लान बनाना सीख रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन प्लांट ओनली। प्लांट बनाया इसलिए वन डाला, नेक्स्ट लेंगे ना, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स। देखो प्लांट है इसलिए वन डाला, अभी प्लांट बन गया, इतना ही चीजें प्लांट में डालनी, बाकी कोई भी चीज डालनी नहीं है। यस, किसी को कॉस्टिंग देखनी है प्लांट लेवल पे, तो वो इधर क्या डाल सकता है, कॉस्ट सेंटर का नंबर डाल सकता है, कॉस्ट सेंटर में अकाउंट नंबर, बट ये भी मैं बताऊंगा कब डालना है। ओके, तो दिस इज अ कॉस्ट सेंटर, ये फाइनेंस टीम देगा, ये पर्टिकुलर नंबर अपने को जस्ट डालना है, पर अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ भी मत डालो, करेक्ट है, जब डालना होगा तब मैं बताऊंगा। अभी क्या डालना है, मतलब इधर खाली प्लांट डालना है, इधर भी कुछ नहीं डालना है, डायरेक्टली इधर आना है, खाली पोजीशन ये टिक निकालना है एंड जस्ट सेव इट। देखो नीचे मैसेज है, फंक्शन लोकेशन 1010 इज क्रिएटेड, करेक्ट है। Yes, sir. Yes. Now what is second location? Is a location, correct? It's a location only. What is a location? It's a machine shop. How we map the machine shop? In 3 digit. What is the short form? MSH. तो अपने को MSH बनाना है, तो जाओ उधर डालो डैश और डालो MSH, करेक्ट है। अगेन ओके फाइन, ओके सेकंड क्या है, पहले प्लांट तो बना लिया, सेकंड क्या है, Location. लोकेशन क्या लिया अपन ने, Machine shop. मशीन शॉप। मशीन शॉप के लिए कितने डिजिट दिए अपन ने, 3 डिजिट। तो मशीन शॉप को 3 डिजिट में बैठाओगे तो क्या लिखोगे, MSH लिखेंगे, तो MSH डाला है, देखो डैश डाल के MSH डाल दिया, देखो ना ये 3 डिजिट का ऊपर MSH डाला, ये 3 डिजिट है इसलिए MSH डालना है, करेक्ट है। ये एडिट मार्क्स को ही अपन फॉलो कर रहे हैं ना, इसको थोड़ी ये इसलिए तो बनाया है ना, वी शुड हैव टू फॉलो इट। तो सब चीजें जो बनेंगे वो स्ट्रक्चर वे में बनेंगी, दैट इज वाई, करेक्ट। तो ये MSH डालो और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करो। अगेन सेम स्क्रीन ओपन हो जाएगा, उसमें देखो पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ लोकेशन, करेक्ट है, लोकेशन ये, और कौन सा लोकेशन है, Machine shop. देख के बोलो, मशीन शॉप है, तो लोकेशन नाम भी Machine डाल shop. सकते हो, लोकेशन भी डाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली मशीन शॉप भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू क्या लिखना है, ये अपने को क्लाइंट ही देगा, उसको बोलो भाई क्या नाम डालना है, तुम बताओ हम डाल देंगे, अपने को खाली बनाने का काम रहता है, डेटा सब वो लोग देंगे अपने को, बिकॉज उनके इंडस्ट्री में किस चीज को क्या नाम है ये आपने अपन नहीं डिसाइड कर सकते, राइट। Yes, sir. तो लोकेशन इज अ मशीन शॉप, तो ऐसा डाल दिया। नाउ जनरल डेटा तो अपने को पहला फील्ड भरना ही नहीं, तो जस्ट इग्नोर मारो इसको, लोकेशन में जाओ, ऑलरेडी 1010 आया है, इधर डालने का जरूरत पड़ा क्या अपने को, नहीं। क्यों आया, बिकॉज इसका सुपीरियर लोकेशन क्या है, ये प्लांट है, तो वो सुपीरियर लोकेशन से डेटा कैरी फॉरवर्ड करते ही जाएगा, तो मेंटेनेंस प्लांट डालने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उसने सुपीरियर से उठा लिया, तो अपन सही जा रहे। नाउ इधर फिर वो लोकेशन दिया है उसने, तो लोकेशन बना रहे तो लोकेशन तो भरना पड़ेगा, तो लोकेशन भरो, अपना मशीन शॉप है, तो इधर मशीन शॉप अवेलेबल है क्या, देखो No, sir. नहीं है, तो यू कैन मेक न्यू लोकेशन, तो इधर जाने का, तो इसमें कंटिन्यू स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्ट बोलेगा, तो उधर कस्टमाइजेशन सेटिंग ओपन होगा, और फिर देन वी कैन मेक अ लोकेशन, देखो डिफाइन लोकेशन, बट ये अभी के लिए सीखो मत, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, करेक्ट है। तो जब अपन कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तब लोकेशन कैसे बनाना है आई विल टीच यू, करेक्ट है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होगा, करेक्ट है, नया बनाना, बट अभी के लिए जो अवेलेबल है, क्योंकि वी आर लर्निंग हाउ टू मेक अ मास्टर डेटा, तो अभी के लिए जो अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर लो। तो से फॉर एग्जांपल लोकेशन यूटिलिटी ऐसे समझ लो, किसी को कुछ डाउट इसमें, देखो लोकेशन मशीन शॉप अपन बना सकते हैं, आप बोलोगे मैं कस्टम लोकेशन 2 मिनट में बता दूंगा, पर ये टॉपिक अपन ने लास्ट में रखा है, जैसे कोई फील्ड को कस्टम बोला है,
कोई बोलेगा भाई मेरे को लोकेशन मशीन शॉप कुछ अलग नाम देना है, तो वी कैन गिव देम, ये कंसल्टेंट का ही काम रहता है, पर वो चीज अपन सेपरेट लेने वाले। दैट टाइम वी अगेन ओपन द फंक्शन लोकेशन स्क्रीन। ये स्क्रीन में कौन कौन सा बटन चाहिए, कौन कौन सा फील्ड चाहिए, ये कितना बढ़ाना है, क्या करना है, ये सब अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैसे कंट्रोल करना है, एवरीथिंग आई विल टीच यू, सो डोंट वरी अबाउट। अभी के लिए जो अवेलेबल है वो उठा लो, सपोज यूटिलिटी उठा लो। नाउ प्लान सेक्शन डालने का जरूरत है क्या? नहीं है, बिकॉज प्लान सेक्शन बनाना ही बाकी है। प्लान सेक्शन बनाएंगे तब उसका डालेंगे ना, अभी तो लोकेशन ही बता रहे हैं, तो खाली लोकेशन डालो और आगे बढ़ो। नो नीड टू पुट एनीथिंग। देखो इधर प्लानिंग प्लांट ऑलरेडी चीजें आ गई, नो नीड टू पुट एनीथिंग। डायरेक्टली स्ट्रक्चर में जाओ, इसका पोजीशन कितना होगा बोलो यार? 2 रहेगा, सही बात है। और इधर दिख रहा है एक चीज मॉनिटर करो, सुपीरियर फंक्शन लोकेशन में क्या लोकेशन आ गया? प्लांट आ गया। मतलब ये सिस्टम बता रहा है कि भाई ये जो लोकेशन है इसका सुपीरियर ये है, करेक्ट है? यस और नो? तो ये बोल रहा है कि इसका सुपीरियर ये सिस्टम भी बता। देखो सुपीरियर फंक्शन लोकेशन प्लांट डाला, इधर इक्विपमेंट लगाना है कि इसके बाद? नो सर। तो निकाल दो, ठीक। सेव इट। अरे यार सेव इट। सिस्टम बता रहा है देखो ये 1010 ये मैसेज बन गया, तो नेक्स्ट क्या बनाना है? नेक्स्ट बना है प्लांट सेक्शन। व्हाट इज द प्लांट सेक्शन? इज अ मोल्डिंग मशीन। व्हाट आर द कैरेक्टर? 4 कैरेक्टर। व्हाट आर द शॉर्ट फॉर्म? MLDM। ओके, तो मेक MLDM डैश बोलो, MLDM डाल दो, करेक्ट है? क्या पता मैडम? यस सर। You can take small also. Enter करो। What is that? मोल्डिंग मशीन। मोल्डिंग मशीन ही है, यही है ना, बोलते जाओ। यस सर। मोल्डिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन डालो। लोकेशन में देखो सुपीरियर से डेटा उठाए, यूटिलिटी ऑटोमेटिकली आ गया। तो दिस इज अ प्लांट सेक्शन। अभी प्लांट सेक्शन बना है तो प्लांट सेक्शन वाला फील्ड भरेंगे। इधर मोल्डिंग मशीन है क्या? ढूंढो। है, नहीं रहेगा तो बना सकेंगे, तो है तो ले लेते हैं, नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए फिर बना सकेंगे। फाइन ट्यून करना है तो पहले बार सीख लो, देन यू थिंक अबाउट द फाइन ट्यूनिंग। सो मोल्डिंग मशीन है तो ले लिया, देखो उठा लिया, डबल क्लिक कर लिया, आ गया। बाकी चीज डालने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, इधर भी डालने का जरूरत नहीं। गो टू द स्ट्रक्चर, कौन सा पोजिशन है? 3rd पोजिशन है। और इसका सुपीरियर लोकेशन देखो बता रहा है कि भाई इसका सुपीरियर मशीन शॉप का ये सुपीरियर है MSH वाला। ये देखो ऊपर भी देखते जाओ क्या क्या चल रहा है, इसका सुपीरियर बता रहा है। इधर इक्विपमेंट लगाना है, नहीं लगाना है, निकाल दो, ठीक। सेव इट। ये देखो ये स्ट्रक्चर बन रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? प्लानर ग्रुप बनाएंगे। तो प्लानर ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्विंग, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स हु आर इन्वॉल्विंग प्लानिंग एक्टिविटीज। तो इधर क्या है? प्लानर ग्रुप मैकेनिकल लिया है, अपने पास डिजिट क्या है? 3। शॉर्ट फॉर्म क्या है? MSC। तो बनाओ उसको, डैश डालो, ME। चलो भाई कैपिटल में ले लेते हैं, एंटर इट। डालो इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम, मैकेनिकल टीम कुछ भी डाल सकते हो, मैक टीम डाल सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। डाल दिया, इसको इग्नोर मारो, लोकेशन में जाओ। देखो डेटा ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो नो नीड टू पुट। ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, इधर अभी अपन प्लानर ग्रुप बना रहे हैं, यस और नो? यस सर। सो इधर प्लानर ग्रुप का नाम दिख रहा है किधर? नो। व्हाई नॉट? चेक इट अगेन। प्लानर ग्रुप नाम नहीं दिख रहा है? मैकेनिकल टीम। हाँ दिख रहा है नीचे। यस नीचे दिख रहा है, तो प्लानर ग्रुप बना रहे तो प्लानर ग्रुप भरना पड़ेगा ना। तो देखो अवेलेबल होगा तो ले लो, नहीं तो दूसरा ले लो। है क्या मैकेनिकल? PM मैकेनिकल प्लानर, तो ले लो उसको। ये देखो आप आपका नाम से भी ग्रुप बना सकते हो। देखो एक मेरा स्टूडेंट है रामू, मैकेनिकल रामू बना मैंने, यू कैन मेक इट। और वो एक ऐसा है कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे। जब मैं कॉन्फ़िगरेशन बोला तो लास्ट में सीखेंगे, ऐसा समझ लो। क्योंकि अभी कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल में सिखाया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपके लिए समझना। ओके, तो दिस इज अ प्लानर ग्रुप, तो फिर वो जम्बलिंग हो जाता है। तो डाल दिया, बाकी चीजें डालने का जरूरत नहीं है मेरे को। आप वर्क सेंटर भी डाल सकते हो, बट इट डिपेंड। अभी वर्क सेंटर मीन्स क्या होता है कि भाई कौन सा वर्क सेंटर, तो ले लो इधर वर्क सेंटर ढूंढो। अपना प्लांट है तो प्लांट डालो 1010 और ढूंढो इसको वर्क सेंटर।
तो अपना मैकेनिकल टीम काम कर रहा है तो मैकेनिकल का वर्क सेंटर लेंगे, इधर मैकेनिकल करके कोई दिख रहा है मैकेनिक्स करके दिख रहा है तो ले लो इसको, एंटर आ गया। पीएम मैकेनिकल प्लानर और मैकेनिक्स करके वर्क सेंटर आ गया, बाकी चीजें भरने का जरूरत नहीं। इफ यू वांट टू पुट कॉस्ट सेंटर यू कैन पुट, बस इट डिपेंड। अभी भरो मत, स्ट्रक्चर में जाएंगे, क्या है उसका 4 नंबर है करेक्ट। इसके बाद इक्विपमेंट लगाना है क्या? नो सर, नहीं लगाना है, टिक निकाल दो। देखो सुपीरियर क्या हो गया, ये फॉलो करो उसका। अरे यार क्या सुपीरियर फॉलो करते जाओ, ये फॉलो करते हो गया, सेव इट, बन गया स्ट्रक्चर। अभी क्या बचा है, गो देयर, 5th नंबर, सब इक्विपमेंट बचा है। व्हाट इज सब इक्विपमेंट? इट्स अ मोल्डिंग मशीन राइट, 4 कैरेक्टर MLD1 बना उसको, डैश MLD1 एंटर। क्या है नाम बोलो उसका, मोल्डिंग मशीन, नंबर डालेंगे नंबर 1, ओके। इसको इग्नोर मारो, लोकेशन जाओ, ऑलरेडी डेटा आ रहा है करेक्ट है तो नो नीड टू पुट एनीथिंग। इसको जाओ, डालना है कुछ, ये तो सुपीरियर इक्विपमेंट है, सुपीरियर इक्विपमेंट कुछ भी पूछना है तो नो नीड टू पुट एनीथिंग, ऑलरेडी डेटा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपका। स्ट्रक्चर में जाओ, इसका नंबर क्या है 5 है, डाल दो, सुपीरियर इक्विपमेंट आ रहा है। अभी ये टिक रखना है कि निकल देना है? ये रखना है सर, रखना है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये टिक नहीं रखा तो इसके नीचे इक्विपमेंट लगाने नहीं देगा सिस्टम। ये टिक निकाल दिया और सेव कर दिया, जब आप इक्विपमेंट इंस्टॉल करने जाओगे, कैसे इंस्टॉल करना है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तब डायरेक्टली पॉपअप करके एरर आएगा कि इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन नॉट अलोडेड फॉर दिस फंक्शन लोकेशन, दिस फंक्शन लोकेशन, ऐसा एरर आएगा। एरर कैसे आता है मैं कल एरर लाके दिखाऊंगा, चलेगा तो। पर अभी के लिए नॉर्मल चीज समझो, इधर टिक लगाना है, सिंगल इंस्टॉलेशन तो लगाना नहीं, फ्यूचर में किसी कंपनी का इक्विपमेंट बढ़ गया तो क्या करोगे, ओके। तो सेम रखो, टिक लगाओ और सेव करो। नाउ दिस फंक्शन लोकेशन, बट ये तो एक ही लाइन में दिख रहा है, हमको तो हायरार्की चाहिए। Sorry, but I have to leave right now. Sir, in the middle of Yes, the yes. class, I'm sorry. You can check recordings. Okay, you can go through recordings, don't worry. Okay. एक तो आदमी है ना, Sure, sir, I will do. okay. So so next क्या रहेगा? Shall I leave? Yes, you can. वासु, ये देखो, ये फंक्शन लोकेशन तो बना लिया पर ये हॉरिजॉन्टल है, और मैं आपको बोला था कि भाई अपने को वर्टिकल चाहिए, तो ये तो गलत हो गया है ना, ऐसा लोकेशन चाहिए तो ऐसा दिखाना है फिर सिस्टम में, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये देखने के लिए डिस्प्ले फंक्शन लोकेशन का टी कोड यूज करेंगे, तो ये अलग एक टी कोड है, तो ये IH01 है। तो ध्यान में कैसे रखेंगे, अपने को हायरार्की देखने का है ना फिर इसका, तो हायरार्की का ये उठा लो, IH01 लगा दो। तो नेक्स्ट स्क्रीन ले लो, ये देखो, ये नेक्स्ट स्क्रीन जाएंगे, सेम स्क्रीन आ गया, इनिशियल स्क्रीन, इधर टी कोड डालो IH01, डाल दिया, एंटर करो। yes sir, तो फंक्शन लोकेशन स्ट्रक्चर इधर देख पाएंगे। तो इधर क्या करो, सब डिलीट कर डालो, खाली फर्स्ट फंक्शन लोकेशन रहने दो, क्या अपना 51 है, करेक्ट है। तो इसके नीचे कितना लेवल देखना है अपने को, कितना लेवल था अपना, बिलो लेवल 4, 5, 5 था, तो 5 डालना है 5 करो, एंड एग्जीक्यूट करना है। दिस दे वॉच का सिंबल एग्जीक्यूट कर, जैसे एग्जीक्यूट करोगे ये देखो अपने को स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, yes sir, यू कैन सी, देखो 1010 समझ लो इसको, दिस इज अ प्लांट, बिलो द प्लांट देयर इज अ लोकेशन, दिस इज नथिंग बट अ मशीन शॉप, बिलो द लोकेशन what is that, below the location what is that, machine department, mechanical department, below the location there is a plant section, so this Plant is a plant section is molding machine, below the molding machine there is a planner group, mechanical team, below that there is a superior equipment, बन गया स्ट्रक्चर, molding machine, yes sir, सेम यू कैन सी। देखो बनाना कैसे है, एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या डेटा भरना है, देखो ये PPT में दिया है वैसा डेटा भरते चलो, करेक्ट है। yes sir, और लास्ट में Yes, यू sir, कैन correct. सी द हायरार्की, so this is nothing but hierarchy। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके नीचे इक्विपमेंट बिठाएंगे, यस और नो, तो ये अपने को बना Yes, sir. आपको बना के बताना है। तो दिस इज द yes sir, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, ये आपके इंडस्ट्री के हिसाब से लो, आपका प्लान डालो, देखो एक अलग प्लान कोड लो, देखो yes sir, बिल्कुल, डालते टाइम 1010 ही डालो बट नाम अलग डालो, फिर वो प्रैक्टिस करने नहीं देगा, क्योंकि ये एक ही बनता है सिस्टम में, प्रैक्टिस के लिए उसको ऐसा एज्यूम करो फर्स्ट,
ये फर्स्ट थिंग। यस फिर आपके इंडस्ट्री में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, उसके हिसाब से बनाओ। करेक्ट है। यस सर सो अदर देन दिस इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क। आज के लिए तो इतना ही। नहीं सर काफी कुछ स्पीड के बारे में कुछ डाउट हो, लैंग्वेज का डाउट हो, यू कैन आस्क फ्रीली, नहीं, डोंट नहीं, वरी, देयर इज नो इशू। हाँ सर ठीक है, Okay, sir. प्रैक्टिस करो, रेगुलर क्लास अटेंड करो।